हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस ईरानियन पर्शियन इन्वेशंस के बारे में और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा इंडिया की मगध एम्पायर के दौरान के इंडिया पर। उस समय के इंडिया की स्थिति कैसी थी और उस समय ईरानियन इन्वेजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। बेसिकली हम बात करेंगे डेरियस के इन्वेजन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन इंग्लिश फर्स्ट. So the rulers of Iran, the rulers of Iran who expanded their empire at the same time as the Maghad Empire took advantage of the political disunity on the northwestern frontier of India. The ruler named Darius I, who was also known as the Raya Bahu. The ruler named Darius I, who was also known as the Raya Bahu. He penetrated into northwestern India in 518 BC and he annexed Punjab at that time, which was in the west direction of Indus and Sindh region. This area, the area of Punjab constituted the 20th province, that is 20th Shtrapi of Iran. 20th province, that is Kshatrapi of Iran, and the total number of provinces in the Iranian Empire being 28. This was the 20th province. This province was most fertile area of the Iranian Empire. From this province, the empire received about 360 talent gold as revenue. So this was a unit. Talent was a unit at that time, and 360 talent gold was what they used to receive from this fertile region of Punjab. That is why this area was very important for Iranian Empire. The Indo-Iranian contact lasted for about 200 years. For about 200 years, this contact lasted. Now let's talk about the effect of Iranian invasion. So it gave an impetus to Indo-Iranian trade and commerce. Trade and commerce flourished at that time. Through the Iranians, the Greeks came to know about the great wealth of India, and this eventually led to Alexander's invasion into India. The Iranian scribes brought into India a form of writing which came to be known as Kharoshti. So we all know that there was a script called Kharoshti script, which was written from right to left like the Arabic script. So Iranians introduced this script into India, and Iranian influence on modern sculpture is also visible, especially in the bell-shaped capitals. So as we know, in the pillars of the Mauryan Empire, or any pillars, there is kind of a capital at the top, and Iranian sculptures had the Iranians had the influence of Mauryan sculptures in form of these bell-shaped capitals. Iranian influence may also be traced in the preamble of Ashoka's edicts as well as in certain words used in them. So this is how Iranians affected the sculpture and the scribe of India, and how they invaded into India. अब इसी बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो इरानियन इन्वेजन, जो ईरान के लोग थे, उन्होंने अपना एम्पायर भी उसी समय फैलाया जिस समय मगध एम्पायर ज़्यादा प्रोमिनेंस में था. उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं थी एम्पायर्स के बीच में. तो जो रूलर था डेरियस वन नाम का, जिसे दरया बाहू भी कहा जाता है, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अटैक किया 518 BC में. पेनिट्रेट किया मतलब इसमें आ चुके थे वो, और उन्होंने उस समय के पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया. ठीक है, जो पंजाब था वो इंडस और सिंध रिवर रीजन के वेस्ट में पड़ता था उस समय, और उन्होंने पंजाब को अपना 20वां प्रोविंस मतलब 20वां राज्य यानी कि 20वीं क्षत्रापी बना लिया. ठीक है, इरानियंस ने. उनकी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोविंस कितने थे? टोटल नंबर ऑफ़ प्रोविंस 28 थी, और जो पंजाब था उनका मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया था, और इस एरिया से उन्हें लगभग
360 टैलेंट गोल्ड जितना रिवेन्यू होता था, मतलब इतनी ज़्यादा कमाई होती थी। ठीक है, जो इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट है वो अबाउट 200 साल तक लास्ट किया, मतलब 200 साल तक इंडिया और ईरान के लोगों में संबंध बने रहे। ठीक है, अब इनके अफेक्ट की बात करें तो ईरानियन इन्वेजन का क्या अफेक्ट पड़ा इंडिया पे, तो इनके इन्वेजन से हमारे ट्रेड में, जो हमारा व्यापार था, कमर्स था, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। और इसके अलावा ईरानियंस को देख के ग्रीक लोगों ने भी अब भारत की ओर आना शुरू कर दिया। इन्हीं की वजह से, इन्हीं से प्रेरणा लेके अब सिकंदर भी भारत आ गए, उनका भी इन्वेजन हुआ फिर भारत पे। इसके अलावा जो ईरानियंस थे उनके आने से हमारे यहाँ एक और चीज़ जो हुई वो ये थी कि हमें पता है कि किसी भी भाषा की होती है ना, एक स्क्रिप्ट होती है किसी भी भाषा को लिखने के लिए। तो अब हमारे पास ईरानियंस की वजह से एक नई स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हो गई, जिसे खरोष्टी स्क्रिप्ट कह के बुलाया जाता है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट बेसिकली फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। ठीक है, जैसे अरेबिक लिखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई। और इसके अलावा जो स्कल्पचर है उसकी बात करें तो उसमें भी इन्फ्लुएंस हुए ईरानियंस की। तो उनकी इन्फ्लुएंस कहाँ देखने को मिली कि कोई भी एक पिलर होता है जैसे, ठीक है, उसके ऊपर कैपिटल होता है। ठीक है, तो उस कैपिटल में ईरानियंस की इन्फ्लुएंस देखने को मिली। ठीक है, जो बेल शेप्ड कैपिटल होते थे उनमें ईरानियंस की इन्फ्लुएंस देखने को मिली। इसके अलावा जो अशोका का जो पिलर एडिक्ट है, ठीक है, उसमें भी ईरानियंस की इन्फ्लुएंस इस तरह से देखने को मिली कि वहाँ उस पर जो लिखे हुए शब्द थे उससे पता लगता था कि ईरानियंस ने उनको उस समय की इतिहास को प्रभावित किया था। तो ये थी बात ईरानियन इन्वेजन्स के बारे में, डेरियस के इन्वेजन के बारे में। थैंक यू सो मच।